Hello everyone, welcome to all of you on this YouTube channel, Saurabh Goswami, History Optional for UPSC. And today we are going to discuss previous year questions from History Optional paper for UPSC aspirants. Basically for paper 2, Modern Indian History, we are going to discuss paper for the year 2021. So you already are familiar with the format of the video. In each and every video, we discuss one complete question, and here we are going to discuss modern Indian history question number 2, and there are three sub components in this question, that is question number 2, A, B and C. So from 2021 paper of modern Indian history, we are going to discuss three questions, question number 2, A, B and C. You already are familiar with the format. In part A, I have already discussed question number 1 and A, B, C, D, E. There were 5 questions, 10 marker question that we have discussed in video 1, part A. Here we will discuss question number 2, A, B and C. In part C, we will discuss question number 3, A, B, C. And in part 4, we will discuss question number 4, A, B and C. So here the marks distribution is question number 2A is of 20 marks, B 20 marks and C 10 marker question. Word limit, okay, you all know when we are talking about 10 marker question, this is 150 word. In 20 marker question, it has not been written, but we are preparing the model answer, okay, in 300 words limit, but you can write from 250 to 300. Okay, in GS questions, you will find that 20 marker question, you have to write 250 words. So according to that 250, but I believe that 250 to 300, or you have to prepare at least 300 words की तैयारी आप रखिए. So ultimately you will come to the 250 words. So this is the format. Now let's discuss the question. Okay, so you must download the paper from UPSC website. वहाँ पे ये available है. आप search करेंगे तो PDF मिल जाएगा, right? So here this part we have already discussed, A, B, C, D, E. So today we are going to discuss question number 2, A, B and C. Okay, so I am bringing the typed version of the question, so it will be easy for you to read. So here let's identify the theme of these three questions. Question number 2A is 20 marker question, 2B is again 20 marker question, and 2C is a 30 marker question. And what is the theme? So the first question reads that India had been the world leader in the field of hand-spun, hand-woven yarn and cloth for many centuries. So देखो, highlight this. India had been a world leader for many centuries. भारत कई शताब्दियों तक पूरे विश्व में अग्रणी रहा है. किस बात के लिए अग्रणी रहा है? तो in the field of hand-spun and hand-woven yarn. It means we are talking about textile production from India. We are talking about handicrafts from India, because there were no industries in modern sense. Okay, so the production was done at the domestic level, handmade, but still we were leading as a world exporter when it comes to the textiles. Okay, European countries were over flooded with the Indian textiles, and we all know that Bipan Chandra writes it that from Bengal alone, more than 2/3 of export from Asia was contributed. So that is a great achievement for us, for Indians. So for many centuries, India has been a world leader in this field. But the second part of the question says that many nationalist and Marxist critics considered that the British dominion deliberately shattered the traditional and world famous handicrafts of India. Here the historical perspectives have been asked कि Marxist historians और nationalist historians. Many of these historians believe कि इंडिया में जो colonial rule रहा, British dominion means colonial rule, it deliberately shattered. जानबूझकर इसने बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया इंडिया की जो ट्रेडिशनल और वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट है. तो here what is the theme? There are two things. First, there is a topic deindustrialization and decline of handicrafts. This generally you read in your modern Indian history. This question is related to economic history. This theme you read in modern Indian history, but along with this theme, historiographical perspectives has also been included.
especially the question is talking about two perspectives, nationalist historiography and Marxist historiography. Okay, so you will have to integrate while writing answer of this question. So theme has been identified. Again, this is a very popular theme. You will find that this theme will be repeated multiple number of times in previous year questions. आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आप देखते जाओगे आपको रिपीटेशन के ट्रेंड को समझते जाओगे. Now we are coming to question number B. Question number B is saying that what were the various ways in which nationalism manifested itself in India during colonial rule. It is asking about colonial rule कि जब भारत में औपनिवेशिक शासन था तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, इस बात की समझ आपको होनी चाहिए. यू मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज नेशनलिज्म. नेशनलिज्म क्या है इस बात की आपको समझ होनी चाहिए. देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट in what ways the nationalism was manifestation. If you understand this debate that nationalism in India was not single layered but it was a multi-layered process. भारत में राष्ट्रवाद का विकास एकल स्तरीय नहीं था, ये एक बहुस्तरीय प्रक्रिया थी. अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप वो डायमेंशंस भी समझते होंगे जिसमें कि नेशनलिज्म रिफ्लेक्ट होता है. जैसे अभी हमने बात किया इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म, तो ये भी तो मैनिफेस्टेशन है नेशनलिज्म का. या फिर हमने कहा रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, ये भी एक मैनिफेस्टेशन है नेशनलिज्म का. सो देयर आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस एंड हियर वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच नेशनलिज्म वाज रिफ्लेक्टेड. तो उसके पीछे की जो बैकग्राउंड थीम है वो हमें जरूर समझ में आनी चाहिए. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है. और बोथ दिस क्वेश्चन यू हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू राइट. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 1-5 तो कंपलसरी होता है, बट सेक्शन ए और सेक्शन 2 में जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस हैं उनमें से 3 आपको करना होता है, जिसमें से कि मिनिमम 1 आपको किसी सेगमेंट से चूज करना है. तो बेटर टू सेलेक्ट 2 फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, है ना, एंड 1 फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री. तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से अगर आप 2 क्वेश्चन चूज करते हो तो एक तो यही चूज कर लोगे आप. बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके पास लिखने के लिए कंटेंट भी बहुत सारा है. नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. थीम समझ गया. थर्ड क्वेश्चन इज द ईस्ट इंडिया कंपनी had thought that they had found an ideal puppet in मीर कासिम. ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लगा कि मीर कासिम के रूप में उसे एक आदर्श कठपुतली शासक मिल गया है, आइडियल पपेट मिल गया है. मीर कासिम however belied the expectations of the company. लेकिन मीर कासिम कंपनी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा. एग्जामिन क्रिटिकली. अब इसको अगर हमें लिखना है तो थीम क्या है देखो. आफ्टर बैटल ऑफ पलासी 1757 ओके देयर आर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन बंगाल. आपको पता है कि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर आता है और फिर मीर जाफर को रिप्लेस करके मीर कासिम आता है. बट कुछ टाइम के बाद मीर कासिम क्या करता है, कंपनी के खिलाफ ही एक अलायंस बना लेता है. उस अलायंस में अवध के रूलर को मुगल एम्पायर शाह आलम II को मिलाता है. अल्टीमेटली यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर होता है. यानी जिस पॉपेट को अंग्रेजों ने चुना था बंगाल के लिए, अल्टीमेटली उन्हीं के साथ उन्हें वॉर फाइट करना पड़ा. इसका मतलब कंपनी की अपेक्षाओं पे वो खरा नहीं उतरा. तो बेसिकली बैकग्राउंड थीम इज दिस. ओके, व्हाइल राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये 10 मार्कर क्वेश्चन है और रिमेनिंग 2 आर 20 मार्कर क्वेश्चन. सो लेट्स डिस्कस द आंसर्स इन डिटेल. तो आइए इन डिटेल्स आंसर्स को डिस्कस करते हैं कि आंसर्स में क्या है. ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड these 5 questions. Okay, so now we are going to discuss question number 2A. Okay, 1E के बाद 2A. Okay, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को. तो what this question says. Okay, आपको बताया this question is related to decline of handicrafts plus deindustrialization. If you understand the theme, you can easily answer this question. तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड थीम को समझो कि फॉर मेनी सेंचुरीज बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया, आपको पता है कि यूरोपियंस के आने की शुरुआत तो 15th सेंचुरी के लास्ट डिकेड से ही हो गई थी, 1498 से. ब्रिटिश जो हैं 1600 के बाद है, बेसिकली 1608 1613 में इनके इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट्स मिलते हैं. देन व्हाट हैपेंस, ओके, 1757 आता है. 1757 के बाद EIC का पॉलिटिकल रोल है. फिर 1858 तक व्हाट वी सी,
indirect rule of Britain in the form of EIC rule. फिर 1858 के बाद we see 1947 तक डायरेक्ट ब्रिटिश रूल है, ठीक है, ये है डेवलपमेंट। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि 1760s जो है, एग्जाम में ये सारे फैक्ट्स नहीं लिखने, मैं इसलिए थीम, क्योंकि हमारी डिस्कशन 3 स्टेजेस में होती है, यू ऑल नो। स्टेज 1 में हम थीम एनालिसिस, वी डिस्कस थीम एनालिसिस। स्टेज 2 वी डिस्कस आंसर ऑफ द क्वेश्चन 150 वर्ड्स फॉर्मेट इन कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट, पैराग्राफ फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, और मॉडल नंबर 2 जो आंसर का बुलेट फॉर्म में लिखने का है वो भी हम डिस्कस करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में कब शुरू होता है? 1760s। इन इनिशियल फेज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन in Britain, in initial phases, what do we see? Industrial revolution in Britain was a textile revolution. ये पढ़ा होगा आपने। दूसरी चीज समझो, इंडिया में इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल की शुरुआत, डायरेक्ट नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल की शुरुआत 1757 है। बक्सर कब है? 1760 में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब है? 1765 है। So when you look at these years, Treaty of Allahabad के बाद British got the right to collect revenue from Bengal, Bihar and Odisha. तो revenues उनके हाथ में आ गए, that is important thing। तो अब आपको समझना है ये जो 1760s है, okay, it means that the establishment of British control over India, indirect की बात कर रहा है, plus industrial revolution in Britain, both these processes are simultaneous। ये दोनों simultaneous है, दिख रहा है आपको 1760s। अच्छा, अंग्रेजों के आने के पहले कई सेंचुरीज तक इंडिया जो था, इंडिया वॉज अ लीडिंग एक्सपोर्टर। इंडिया क्या था? इट वॉज अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स का लीडिंग एक्सपोर्टर था। हमारे पास मॉडर्न इंडस्ट्रीज नहीं थी, बट स्टिल वी वर एक्सपोर्टिंग। बिपान चंद्रा के बारे में बताया कि वो क्या लिखता है कि बंगाल से अकेले मोर देन 230 ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम एशिया वाज अलोन कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम बंगाल रीजन। एशिया से टोटल 2/3 का जो एक्सपोर्ट था वो केवल और केवल कहाँ से होता था? बंगाल से होता था। तो इट शोज दैट वी वेर लीडिंग एक्सपोर्टर्स, हम लीडिंग एक्सपोर्टर्स थे, टेक्सटाइल के लीडिंग एक्सपोर्टर्स थे। अब देखो, दो चीज़ें आपको समझनी है कि जैसे ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है 1765 में, तो ब्रिटिश गॉट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यूज, उनके पास रेवेन्यूज आएंगे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। कैसे डाइवर्सिफाइड करना शुरू किया? दे स्टार्टेड परचेजिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया विद द रेवेन्यूज दैट वर कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, उसी पैसे से इंडिया से रॉ मटेरियल को खरीदना शुरू किया। एंड दिस दे वर सेइंग परचेसेस। इसके लिए एक वर्ड वो यूज करते थे, परचेसेस। इन्वेस्टमेंट्स भी वर्ड आता है, ठीक है। तो देखो, इंडिया से रेवेन्यू कलेक्ट करके अगर इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा? सस्ता मिल जाएगा। सस्ता क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया ना। जैसा हमारे ही पैसे से हमारे ही रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो एक तरह से ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। दूसरी तरफ क्या होता है, यानी आपको अगर ब्रिटेन में टेक्सटाइल्स बनाने हैं तो आपको जूट, रॉ कॉटन, ये सब इंडिया से लेना पड़ेगा, बट आपने वो परचेस करने के लिए इंडियन रेवेन्यूज का यूज किया। इट मीन्स यू आर गेटिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बात समझो, इन ब्रिटेन प्रोडक्शन स्टार्टेड, बट यहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज वेर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। एंड whenever you will use modern industries for production, so what will happen? Production will be on large scale. प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे होगा। अच्छा, बड़े पैमाने पे जब प्रोडक्शन होगा तो उसको खपाना भी पड़ेगा आपको। इफ प्रोडक्शन इज ऑन अ लार्ज स्केल, सो यू नीड कंज्यूमर्स ना, तो कंज्यूमर्स आपको ओवरसीज कंज्यूमर्स पे फोकस करना पड़ेगा। दिस इज द पॉइंट कि एशिया और अफ्रीका के देशों में भी अपने प्रोडक्ट हम बेच सके। तो जो कॉलोनियल प्रेजेंस है वो क्या कर रही है? आपको नए कस्टमर्स और कंज्यूमर्स दे रही है आपके प्रोडक्ट के लिए। तो एक तो एडिशनल एडवांटेज यहां हो गया। दूसरा, मशीन मेड कॉटन टेक्सटाइल्स विल बी चीपर, अब वो चीपर होंगे। तीसरी चीज आपने क्या की? सिंस यू हैव कॉलोनियल कंट्रोल और डोमिनियन ओवर इंडिया, सो यू डिड व्हाट? यू इंट्रोड्यूस्ड अनफेयर टैरिफ पॉलिसी। आपने क्या किया? अनफेयर टैरिफ पॉलिसी यूज किया। और जब आपने अनफेयर टैरिफ पॉलिसी यूज किया तो इंडिया में यू डिड व्हाट? यू रिड्यूस्ड द इंपोर्ट ड्यूटीज, द
प्रोडक्ट्स दैट वर कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से आने वाले प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटीज को आपने क्या कर दिया, कम कर दिया. एंड व्हेन यू विल रिड्यूस द इंपोर्ट ड्यूटीज, अल्टीमेटली द टेक्सटाइल्स विल बी चीपर इन इंडियन मार्केट, है ना. तो देखो यहाँ पे टेक्सटाइल्स इंडियन मार्केट में चीपर हो गए. जब चीपर हो जाएंगे तो कोई भी कंज्यूमर क्या करता है, उसकी प्रेफरेंस क्या होती है ना. अगर आपको चीपर रेट्स पे, सस्ते मूल्य पे क्या मिले, आपको अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिले, तो आप तो वो प्रेफर करोगे ना. तो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा कि इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल है, जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगी, डिक्लाइन होने लगेंगी. ये है बैकग्राउंड, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द क्वेश्चन. नाउ देयर आर टू हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स दैट हैज बीन गिवन इन क्वेश्चन. क्वेश्चन में दो हिस्टोरियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स की बात की गई है. द वन इज सेइंग, वन इज नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. पहला तो यही है. तो देखो, नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी believes that the colonial authorities or the British presence in India, colonial rule in India, okay, they deliberately promoted deindustrialization, they deliberately ensured the decline of handicraft. यानी नेशनलिस्ट हिस्टोरिक ये मानते हैं कि इंडिया में जो ये डिस्ट्रक्शन हुआ ट्रेडिशनल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का, इट वाज अ प्योरली deliberate destruction, purely deliberate destruction. This is the belief of nationalist historians. जैसे if you will ask बिपान चंद्रा, so बिपान चंद्रा will say that yes, है ना. इंडिया से क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और इन सभी चीजों का डिक्लाइन हुआ है, वो जानबूझकर किया गया है. इट वाज अ प्योर डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन. बट व्हेन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, you will ask Marxist historians about this, Marxist historians will be say that yes, it was deliberate destruction. ये deliberate destruction था, इसमें कोई डाउट नहीं है. But this was not a purely deliberate destruction. ये एक purely deliberate destruction नहीं था. ठीक है. तो क्या था अगर purely deliberate destruction नहीं था? It means that they believe that yes, it was a deliberate destruction. But they are not saying that it was a purely deliberate destruction. वो purely deliberate destruction नहीं मान रहे हैं. तो Marxist historians क्या करते हैं? They explore the scientific reasons behind any happening. तो वो scientific reason क्या explore करेंगे? Marxist historians will say कि British colonial presence ने it created such situations. इसने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी. It created such situations that these situations ensured the decline of handicraft in India. कि उन situations ने इंडिया से हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन को इंश्योर कर दिया. ठीक है. तो कौन से situations क्रिएट किए कॉलोनियल अथॉरिटीज ने? वो situations क्या थी? यही तो situation थी. तो देखो, here नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स बोथ बिलीव कि ब्रिटिश डोमिनियन से डेलिबरेटली शैटर हुआ. बट आपको अपने आंसर में बताना है कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस मानते हैं कि इट वाज अ प्योर डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन, एंड मार्क्सिस्ट क्या मानते हैं कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्रिएटेड स्ट्रक्चरल कंडीशंस दैट इंश्योर्ड द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया. इससे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन हो गया. एंड इट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियाज इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल ट्रेड, एंड हियर द इंटीग्रेशन वाज अनइक्वल. इंडिया का ग्लोबल ट्रेड के साथ इंटीग्रेशन हुआ, इंडियाज इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल ट्रेड, बट हियर दिस इंटीग्रेशन वाज अनइक्वल. ये इंटीग्रेशन अनइक्वल था. क्यों अनइक्वल था? क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो कॉलोनियल रूलर्स के अधीन थी. तो देखो, इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट तो कर रहा है, बट जब वो इंटीग्रेट हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, सो सिंस इंडिया इज अ कॉलोनी, तो ब्रिटिश विल ऑल्सो इंश्योर that this integration must serve the gains for Britain, not for India. Ultimate gains किसको? इस इंटीग्रेशन से इंडिया becoming a part of this global capitalist system, तो इंडिया के इस ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम का हिस्सा बनने का असली फायदा किसको मिलना चाहिए? अंग्रेजों को मिलना चाहिए. वो इस बात को इंश्योर करेंगे. तो देखो, इसीलिए कहा गया कि ये जो ग्लोबल इंटीग्रेशन है ये अनइक्वल है. इंडिया बिकेम अ पार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट ऑर्डर, बट वो क्या इंडिपेंडेंट नेशन है? नहीं. तो कॉलोनी हैड सम लिमिटेशंस.
सो दिस इज द पॉइंट. ओके, तो कॉलोनियल कैपिटलिज्म की बात करते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल एक्सप्लॉयटेशन. स्ट्रक्चरल एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, तो इस बारे में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने अपनी बातें रखी हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फॉर एग्जांपल इन जनरल स्टडीज, जैसे जीएस की जो भी मैंने फाउंडेशन क्लासेस बताई हैं, उनमें जब मैं कंक्लूजन बताता हूं आपको, तो मल्टीपल टाइम्स यू विल फाइंड दैट द कंक्लूजन इज गाइडेड बाय द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस पर्सपेक्टिव. जैसे मैं बिपान चंद्रा की बुक सजेस्ट करता हूं आपको, मॉडर्न इंडिया के लिए 12th क्लास वाली, तो जब बिपान चंद्रा की आप बुक पढ़ोगे तो उस बुक से तो किसी एक राइटर का पर्सपेक्टिव आप समझ पा रहे हो ना, जो जीएस में चल जाएगा बट ऑप्शनल में नहीं चलेगा. तो जीएस में मैंने आपको बताया है कि इंडिया में जानबूझकर अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और इन सभी चीज़ों का डिक्लाइन हो गया. तो जीएस के लिए दैट इज गुड, बट इन ऑप्शनल आपको हिस्टोरियोग्राफिकल इंसाइट्स इंक्लूड करने ही है. यहां तो चलो ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया इसने, ये हिस्टोरियोग्राफिकल इंसाइट्स की बात कर रहा हूं. अगर नहीं भी लिखा हो, देन ऑल्सो यू विल हैव टू इंक्लूड हिस्टोरियोग्राफिकल इंसाइट्स. तो इन हिस्ट्री ईच एंड एवरी टॉपिक हैड सम हिस्टोरिकल इंसाइट्स, and without becoming familiar with those historical insights, your preparation is half done. डिबेट है हिस्ट्री में कि इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये डेलिबरेट था, जानबूझ के किया था, या अंग्रेज अपनी पॉलिसीज लागू कर रहे थे और पता ही नहीं चला कैसे ये हो गया. वॉज इट एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस? क्या एक ऐसा परिणाम था जिसकी उम्मीद अंग्रेजों ने नहीं की थी? जैसे वेस्टर्न प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, उस टॉपिक को भी इसी डिबेट वाले मॉडल में लाके रख दिया गया है. जैसे एक टॉपिक बताया ना आपको पिछली क्लास में, इसी साल वाले पेपर में पूछा गया था कि इंडिया में जो वेस्टर्न एजुकेशन का प्रमोशन था, इसने नेशनलिज्म का प्रमोशन कर दिया था, ये डिलिबरेट था या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था? वैसे ही यहां पे वही डिबेट यहां अप्लाई कर दो कि इंडिया में जो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट हुआ, ये डिलिबरेट था या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था? तो जब आप ये वाला ओपिनियन बैलेंस लिखोगे, बैलेंस ओपिनियन यहां पे यही होगा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का. सो व्हाइल राइटिंग कंक्लूजन यू विल राइट दिस कंक्लूजन, ओके, इट वाज नॉट प्योरली डेलिबरेट. colonial rule in India created such a structural conditions that ensured the decline of handicraft. तो जैसे ही आपने लिखा कि not purely deliberate, इसका मतलब yes I believe that it was deliberate, लेकिन पूरी तरह से deliberate नहीं था. तो हमने क्या किया, इस किसी ओपिनियन को, है ना, न तो हमने कंप्लीटली एक्सेप्ट किया, न तो हमने उसको इंटायरली एक्सेप्ट किया, और न ही उसको इंटायरली रिजेक्ट किया. तो ऑप्शनल में, किसी भी ऑप्शनल में देखोगे, जहां पे बात पर्सपेक्टिव्स की होती है, थॉट्स की होती है, वहां पे यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट समथिंग कंप्लीटली और होली, और यू आर नॉट गोइंग टू रिजेक्ट समथिंग आउटवर्डली, है ना. तो आउटवर्डली न तो आप रिजेक्ट कर सकते हो और न उसको इस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हो. सो दिस इज पार्ट. बट व्हाइल राइटिंग आंसर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मिनिमाइजिंग द फैक्ट्स, दीज फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट एवर द डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस थे, बट फैक्ट्स को मिनिमाइज करना पड़ेगा, राइट. अब आंसर देखो, यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया आंसर में क्या क्या आना चाहिए. एक तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को रेफरेंस देते हुए आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, पहली चीज. सेकेंड चीज क्या बताना है ना, जो क्वेश्चन की जो डिमांड है, एसेंस है, उससे आप फेमिलियर हो गए. अगर उसमें कुछ डायमेंशंस हैं, हिस्टोरियोग्राफिकल इंसाइट्स हैं, तो उनको भी आपको इंक्लूड करना है, ठीक है. क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है उसको डीकंस्ट्रक्ट करना है, थोड़ा सा ओपन करना है. वो बहुत, जैसे लिखा मेनी सेंचुरीज इंडिया लीडर बना हुआ था, थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन करना है, हिस्टोरियोग्राफिकल इंसाइट्स इंक्लूड करना है, ठीक है. कहीं पे अगर कुछ लिमिटेशन है तो वो लिमिटेशन बतानी है, एंड लास्टली यू विल हैव टू राइट द कंक्लूजन. तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 20 मार्क का क्वेश्चन है. तो जीएस के पैटर्न को देखें तो हमें लगता है 250 लिखे है, बट अगर हम जनरली 10 मार्क अगर 150 वर्ड्स है, तो इस लॉजिक से देखें तो हम यहाँ पे 300 वर्ड्स का आंसर लिख सकते हैं, है ना. तो हमने 300 वर्ड्स का ही आंसर तैयार किया है. आप 250 भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 250 280 तक लिख सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. ऑप्शनल में नहीं है. जीएस में 20 मार्क का क्वेश्चन आप देखोगे कि आप 250 में लिख लेते हो. सो फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन, लास्ट पैराग्राफ इज कंक्लूजन. ये लिखना नहीं है इंट्रो, ये नहीं कि यहां जाके लिख दिया इंट्रोडक्शन, नहीं भाई, वो वर्ड भी हमने बचा लिया. तो ये क्या हो गया आपका मेन बॉडी ऑफ द आंसर, और मेन बॉडी में ही आपको बैलेंस आंसर लिखना है. तो क्या करना है, दोनों ही डायमेंशंस लिखना है. ये बात आपको समझनी है. अगर कुछ लिमिटेशन है वो भी आंसर में लिखना है,
This you will have to include. So in paragraph, introduction paragraph, I have written that India's pre-colonial economy. देखो pre-colonial economy मैंने क्यों कहा, क्योंकि अंग्रेजों के आने के पहले इंडिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर था, तो अंग्रेजों के आने के पहले वाली इकोनॉमी प्री कॉलोनियल इकोनॉमी। अंग्रेज आए, धीरे धीरे अपना पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, तो उस इकोनॉमी को हमने कॉलोनियल इकोनॉमी कहा। तो इन प्री कॉलोनियल इकोनॉमी व्हाट हैव रिटन, इट वाज मार्क्ड बाय अ वाइब्रेंट हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, particularly textiles, which commanded global markets. It means that before the British came in India, आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल वर्ड्स में, बट थोड़ा कॉम्पैक्ट लिखते हैं तो लैंग्वेज पे अगर आपकी कमांड है तो लिख सकते हो, ठीक है, कि विद द बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया, इंडिया वाज, है ना, अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड, ओके, इंडिया वाज अ लीडिंग एक्सपोर्टर, इट कंट्रोल्ड एंड कमांडेड ग्लोबल मार्केट्स, स्पेशली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं। द डिक्लाइन ऑफ दिस सेक्टर अंडर ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल में ये क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, हैज बीन इंटरप्रिटेटेड बाय नेशनलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस एज डिलिबरेट आउटकम ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज। चूंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है तो आपने बता दिया कि नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने इसको डिलिबरेट आउटकम ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज कहा है। अब इसके अंदर जाके समझाएंगे कि डिलिबरेट है तो कितना है, स्ट्रक्चरल कंडीशंस की बात करेंगे। नाउ हियर वी आर राइटिंग फर्स्ट नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस व्यू। अब नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, आपको पता है कि इन अर्ली इकोनॉमिक क्रिटिक दीज टू नेम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दादा भाई नौरोजी एंड आरसी दत्त, हम लिख सकते हैं। आर्ग्यूड दैट ब्रिटिश रूल सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। ब्रिटिश रूल ने इंडिया में हैंडीक्राफ्ट को एक सिस्टमेटिक पॉलिसी के थ्रू डिस्ट्रॉय किया, जिसमें अनफेयर टैरिफ वगैरह मैंने आपको बताया। द इम्पोजिशन ऑफ फ्री ट्रेड allowed cheap machine-made British goods to flood Indian markets, undermining indigenous artisans। यानी फ्री ट्रेड के नाम पर 1813 आपको पता है, फ्री ट्रेड के नाम पर इंडिया में जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनको ठूस दिया गया, भर दिया गया, और उसमें अनफेयर टैरिफ भी पॉलिसी थी। याद रखना, जब आप और इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ते होगे तो वहां पढ़ते होगे कि इट वॉज फ्री ट्रेड नॉट फॉर इंडिया बट फॉर ब्रिटेन, ओके, इट वॉज अ यूनिलैटरली फ्री ट्रेड। तो कॉलोनी के साथ कुछ लिमिटेशंस होती हैं। देखो टैरिफ की यहाँ बात की गई ना, हाई टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स इन ब्रिटेन, रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट्स। अब देखो ब्रिटेन से जो गुड्स इंडिया में आ रहा है उस पर आपने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, इंडिया से जो गुड्स ब्रिटेन में जा रहा है ना, तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपने बढ़ा दिया। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया तो अल्टीमेटली इंडियन गुड्स विल बी मोर कॉस्टली। तो देखो जो ट्रेडिशनल पैटर्नेज सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया। ट्रेडिशनल पैटर्नेज सिस्टम क्या है कि जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है तो वो इंडिया के बिजनेसेस को प्रमोट करने का काम करेगी। तो ब्रिटिश के पहले मुगल अथॉरिटीज थे, देयर वर रीजनल स्टेट रूलर्स, तो रीजनल स्टेट रूलर्स और सेंट्रल अथॉरिटी मुगल रूलर्स, दे यूज्ड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इंडियन ट्रेड, and that traditional patronage system was destroyed after the British came to India. It was collapsed, especially after decline of Indian courts. It further accelerated this process. धीरे धीरे आप देखते हैं कि शासक, नवाब, कुलीन, elite class of India, they were losing power, है ना, मुगल दरबार खत्म हो रहा था, रीजनल रूलर्स के कोर्ट्स खत्म हो रहे थे, नोबिलिटी क्लास वाज, है ना, losing its power and authority. So these people, these elitist class in Indian society, here you will find that, okay, due to these people there was a high demand of luxury handicraft goods or items in India. But when they will decline, जब वो खुद ही गरीब हो जाएंगे तो luxury handicraft goods कहाँ से खरीदेंगे? तो there will be a sharp decline due to this reason also. This as I have explained here. Now in part B we will write about Marxist historians. For example, Irfan Habib, Amia Bagchi view this decline within the framework of colonial capitalism. यानी कि इस पूरे के पूरे डिक्लाइन को वो कॉलोनियल कैपिटलिज्म के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इनटू द ग्लोबल कैपिटल सिस्टम इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं। दे आर्ग्यू दैट इंडिया वाज फोर्सिबली इंटीग्रेटेड। अब फोर्सिबली इंटीग्रेटेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, हाईलाइट कर लेना है इसको, कि इंडिया को जानबूझकर बलपूर्वक मिला लिया गया। इंडिया वाज फोर्सिबली इंटीग्रेटेड इनटू द ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स। कहा कि इंडिया को ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम में फोर्सिबली इंटीग्रेट किया गया, और जिस रूप में इंटीग्रेट किया गया वो इंडिया की पहचान नहीं थी। पहले इंडिया की आइडेंटिटी क्या थी? एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब इस इंटीग्रेशन में इंडिया की आइडेंटिटी चेंज हो गई। नाउ इंडिया इज द एक्सपोर्टर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंडिया वाज अ मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स। तो आपकी आइडेंटिटी बदल गई। कभी आप लीडिंग एक्सपोर्टर हुआ करते थे, अब आप लीडिंग इंपोर्टर बन गए।
सो दिस विल हैपन, दिस विल लेड टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? दिस विल मार्क बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्टिजन्स एंड देयर शिफ्ट टू एग्रीकल्चर। इससे जब बिजनेसेस डिस्ट्रॉय होंगे तो लोग खेती की तरफ जाएंगे, बट खेती में भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, एग्रीकल्चर भी पढ़ा होगा आपने अलग से। तो इंटेंसिफाइंग रूरल पॉवर्टी है ना, तो ये इंटेंसिफाई होगा। फिर थोड़ा सा हमने कुछ और इसमें ओपिनियंस को लिखा है कि रिविजनिस्ट स्कॉलर्स लाइक तीर्थंकर राय चैलेंज द नोशन ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन। देखो अब यहाँ पे एक और पर्सपेक्टिव मैंने जोड़ा कि टोटल डिस्ट्रक्शन के आइडिया को चैलेंज भी किया जाता है। तीर्थंकर रॉय आर्ग्यू दैट द डिक्लाइन वाज अनइवन, है ना, कि जो डिक्लाइन हुआ वो इंडिया में हर जगह डिक्लाइन नहीं था। ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में एक साथ सारी चीजें डिक्लाइन हो गई, नहीं, है ना। सम सेक्टर्स वेर अडॉप्टिंग टू न्यू कंडीशंस, कुछ सेक्टर्स जो टेक्नोलॉजिकल चेंज में अडेप्ट नहीं कर पाए, जैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इंडिया में नहीं आया, तो वो टेक्नोलॉजिकल चेंज को हम अडेप्ट नहीं कर पाए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को। तो ये हमारी इंटरनल स्ट्रक्चरल वीकनेस है और इस वजह से भी ये चीजें हुई। तो ये भी एक सोचने का नजरिया है कि भाई देखो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में हुआ बट इंडिया में नहीं हुआ, तो टेक्नोलॉजिकल अगर अपग्रेडेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली है कि हम पीछे रह जाएंगे। बट यहां पे फिर भी ये आर्ग्यूमेंट तो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हुआ? इफ ब्रिटिश वर रूलिंग इंडिया एंड इफ देयर वाज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन, तो ब्रिटेन मस्ट इंट्रोड्यूस मशीन्स इन इंडिया ऑल्सो। अंग्रेज इंडिया में मशीन्स भी लगा देते, लेकिन वो इतने बेवकूफ हैं, मशीन्स लगाएंगे नहीं, उन्होंने मशीन्स नहीं लगाया। यहां तक कि इंडिया में जब रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ, आप देखो 1850s में, है ना, पहली रेल 1853 पढ़ते हो आप, तो वो आयरन और स्टील बाहर से लेके आ रहे थे, अपने देश से लेके आ रहे थे बना के। वो तो बहुत बाद में टिस्को वगैरह लगाया, है ना, 1907 आप पढ़ते हो ना, वो तो बहुत बाद में आया। पहले तो उन्होंने आयरन स्टील भी वहीं से मंगवाया, इंपोर्ट किया। तो ये बात आपको समझनी है कि देयर आर सम लिमिटेशंस इन द कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्री नहीं थे कि हम चाहे तो अपना इंडस्ट्रियल मशीन ये सब लगा दे, नहीं, ब्रिटिश पॉलिसीज डिलिबरेटली हमें नुकसान तो पहुंचा ही रही थी। कंक्लूजन है दिस वाइल इट मे बी सिंपलिस्टिक टू एट्रीब्यूट, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक होगा एक शब्द में ये कह देना कि डिक्लाइन सोलिली टू डिलिबरेट ब्रिटिश इंटेंट कॉलोनी पॉलिसीज। हाँ देखो, मतलब हमें कहना है कि हाँ प्योरली डेलिबरेट नहीं था, है ना, डेलिबरेट तो था, बट साथ ही ये जरूरी है बताना कि इट क्रिएटेड कंडीशंस दैट अंडरमाइन इंडियाज हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी। The process was both structural and exploitative, reflecting the asymmetrical nature of colonial integration and global capitalism. So basically whatever I have written, I have explained here. But these kind of answers when you are writing, if you have a good command over language, you can write good comprehensive and analytical answers. But if you are lacking this, अगर आपको लगता है कि आपको पॉइंट्स पता है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, बट आप बहुत लैंग्वेज पे बहुत एक्सट्रीम कमांड नहीं है, तो यू हैव द सेकंड ऑप्शन, यू कैन राइट आंसर लाइक दिस, बुलेट फॉर्मेट आंसर, ठीक है। और ये और आसान है लिखना, टाइम सेविंग टेक्निक है। यहाँ पे आपको कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखने होते हैं, है ना। और कीवर्ड्स को क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स रीड करो, वो कीवर्ड्स ऑटोमेटिक यूज हो जाएंगे, आप उसको उसी को आंसर में इंक्लूड करने लगोगे। सो हियर मॉडल नंबर 2, इन इंट्रोडक्शन पार्ट आई हैव रिटन दैट India's pre-colonial economy was marked by a thriving handicraft sector, especially textiles, with strong global demand. The decline of this sector under colonial rule has been widely debated across historiographical schools. ठीक है, मेन बॉडी में दो इंटरप्रिटेशन की बात तो की गई थी एग्जाम में, हमने एक और इसमें इंटरप्रिटेशन जोड़ दिया था रिविजनिस्ट वाला। तो नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन में दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्त, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे आप बिपान चंद्रा भी बाद में आप जोड़ सकते हो, ठीक है। प्योर डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस में नॉट प्योरली डेलिबरेट, क्रिएटेड स्ट्रक्चरल कंडीशन, इंटीग्रेशन इन ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कुछ स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करके, राइट। सो नेशनलिस्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, डिक्लाइन। देखो स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा जब मैं सिनॉप्सिस बताऊंगा आंसर्स के, ठीक है, कि पूरे जो 6 इयर्स के क्वेश्चन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, तो यहाँ पे यूज ऑफ स्केचेस, डायग्राम, सिनॉप्सिस और रिविजन नोट्स कैसे होते हैं। तो पहले आप इस वीडियो को देख लो, तब आप रिवाइज करोगे, तब तो मैं बता पाऊंगा ना, है ना। अभी कैसे बता दूं, तो फिर आपको लगेगा ये टीचर को इतना ही आता ही है, सिनॉप्सिस कहीं से ChatGPT से कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो पहले आप समझो, थीम को समझो, ठीक है। और हाँ, जितने ये जो नए टूल्स हैं, AI टूल्स, इनको भी यूज करो अपनी तैयारी में। ये बहुत आपके कंटेंट को, आपके आइडियाज को स्ट्रक्चर करके आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग द एडवांस टूल्स दैट वी आर हैविंग टुडे। Okay, so this is you can say that
boon of technology that we must use while preparation also करना चाहिए. This is not a bad thing, ठीक है, but complete reliance on the technology is definitely a bad thing, ठीक है, वो ध्यान रखना आपको. तो nationalist interpretation, दादा भाई नौरोजी एंड आरसी दत्त, decline seen as a deliberate outcome of colonial policies. फ्री ट्रेड पॉलिसी की बात मैंने की थी, लेड टू द इन्फ्लक्स ऑफ चीप ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स, ठीक है, फ्री ट्रेड पॉलिसी से. अच्छा देखो, इसी वजह से कहा जाता है कि इट वाज यूनिलैटरली फ्री ट्रेड. फ्री ट्रेड तो था लेकिन वो यूनिलैटरल था. ब्रिटेन इंडिया के साथ जो चाहे कर सकता था, इंडिया ब्रिटेन के साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकता था. इम्पोज की गई, इंडिया वाज फोर्सिबली इंटीग्रेटेड, इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है. हाई टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन. कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल पैटर्न्स, डिक्लाइन ऑफ कोर्ट्स एंड नोबिलिटी, बता चुका हूं आपको कि इससे जो लग्जरी गुड्स की डिमांड है ना, उनकी अचानक शार्प डिक्लाइन हो जाएगी. रिजल्ट सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट्स. नाउ द मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन पार्ट 2, व्हाट वी सी हियर. Explained within the framework of colonial capitalism, India transformed into supplier of raw material, market for finished goods. It led to deindustrialization, decline of handicraft, displacement of artisans to agriculture, intensification of rural poverty. Revisionist approach, तीर्थंकर रॉय, इन्होंने कहा कि it challenges the idea of total destruction. इन्होंने कहा कि decline was uneven and sector specific. ऐसा नहीं कि हर जगह decline था और सारे sectors में था, ये sector specific था, region specific था. इसका रीजन इन्होंने बताया कि एक ये भी रीजन है कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडनेस, हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर पाए, शायद इसलिए भी पिछड़े रह गए. तो ये बात काफी हद तक सही है, बट ये भी आपको समझना है कि इन कॉलोनियल रूल वी हैव सीरियस लिमिटेशंस. ओके, सो तीर्थंकर रॉय एम्फसाइजेस ऑन द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. कि देखो भाई, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, ये क्यों भूल जाते हो? तो आपकी इंडस्ट्रीज कमजोर होनी ही होनी है ना. इंटरनल स्ट्रक्चर वीकनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अगर हम अपग्रेड नहीं कर पाए, मशीन्स इंस्टॉल नहीं कर पाए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं कर पाए, तो ये तो हमारी स्ट्रक्चरल वीकनेस है. बट इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, आंसर क्या होगा कि भाई देखो, कॉलोनियल लिमिटेशंस इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है. व्हाट इज द कंक्लूजन लास्टली? डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड सोनली टू द डिलिबरेट colonial content. However, colonial policies created adverse and exploitative conditions and reflects structural transformation and unequal integration into the global capitalism. देखो यहाँ पे दो तीन चीजें आपको एकदम ध्यान रखनी है. देखो, कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू डेलिबरेट कॉलोनियल इंटेंट ना. कंक्लूजन मैंने बताया था कि इट वाज नॉट प्योरली डेलिबरेट. कॉलोनियल पॉलिसीज क्रिएटेड स्ट्रक्चरल कंडीशंस, ठीक है, और उस स्ट्रक्चरल कंडीशंस की वजह से ये हुआ. इंडिया वॉज फोर्सिबली और अनइक्वली इंटीग्रेटेड इनटू द ग्लोबल कैपिटलिज्म. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कंक्लूजन में आप डाल सकते हो. दिस इज द बैलेंस्ड ओपिनियन. तो आई थॉट दैट यू हैव गॉट एन आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखो, whenever you are revising history optional, your course you have completed already, taken some classes, so you should practice 2 or 3 questions daily. And at the same time you should also revise the theme of that question. अपने नोट्स को उठाओ और जिस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर रहे हो, उस क्वेश्चन का जो थीम है, बैकग्राउंड थीम है, उसको भी पढ़ जाओ. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रीड अबाउट दैट बैकग्राउंड थीम. उस बैकग्राउंड थीम के बारे में भी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है. मेरी बात समझ गए? उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. बैकग्राउंड थीम को जब तक नहीं जानेंगे, और रिवाइज भी हो जाएगा. जैसे आज मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया क्वेश्चन, तो आपकी क्लास में पढ़ी गई चीजें कितने बेहतर तरीके से रिवाइज हो गई, आपको कुछ नई चीजें भी मिली, एड ऑन भी हुआ, लास्ट में आपने आंसर मॉडल भी देख लिया. तो देखो, अपनी फाउंडेशन क्लासेस के बाद अगर इस तरह का एक रिवीजन प्रोग्राम और पीवाईक्यू डिस्कशन हम 10 ईयर्स या 15 ईयर्स के क्वेश्चन का कंप्लीट कर लेते हैं, 15 ईयर्स तो मिनिमम होना ही चाहिए, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स पाने की संभावना बहुत बेहतर हो जाती है, और आप खुद इस बात को महसूस करोगे. यू विल बी कॉन्फिडेंट इन आंसर राइटिंग. Now we are coming to question number 2A. Sorry, 2A नहीं, 2B. 2A we already have discussed. So it is a 20 mark question and we will write it in 300 words limit. आप 250 या 300 दोनों पे जा सकते हो. There is no any problem. ठीक है ना? चलिए, बट हम 300 के हिसाब से कर रहे हैं. Question is, what were the various ways in which nationalism manifested itself in India during colonial rule? तो colonial rule की बात कर रहा है. इसका मतलब अगर हम कॉलोनियल रूल की बात करें तो यही है कि ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन के दौरान, जो इंडिया में जो नेशनलिज्म है या राष्ट्रवाद है ना, अलग अलग रूपों में परिलक्षित हुआ, अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ.
तो आपको वही एक्सप्लेन करना है कि कैसे प्रकट हुआ। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है, जो पहले भी मैंने आपको बताया कि इंडिया में जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, थीम तो यही है, दिस इज द थीम। सो फर्स्ट you must read the basics of this theme, and after reading this theme you will realize that in India the growth and development of nationalism was a multi-layered process, एक बहुस्तरीय प्रक्रिया थी, okay, and it was an evolving phenomena. nationalism अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ। इट वॉज इवॉल्विंग फेनोमेना, अलग अलग समय में नेशनलिज्म के अलग अलग रूप थे, ठीक है, उनके अलग अलग मायने थे। जैसे इट वॉज नॉट अ सिंगुलर फेनोमेना, इट वॉज अ प्लूरल फेनोमेना, इट वॉज अ इवॉल्विंग फेनोमेना, ये ध्यान रखना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म वॉज नॉट अ सिंगुलर फेनोमेना, इट वॉज अ प्लूरल फेनोमेना। और जब कोई भी चीज प्लूरल फेनोमेना है तो उसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग रूपों में होगा। जैसे पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है, इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन होता है, सोशल जैसे मान लो आप स्वराज की मांग कर रहे हो, डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे हो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हो, यू आर सेइंग अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। दिस इज व्हाट पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेशनलिज्म। व्हाट इज इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन? आपने कहा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ लेके आ रहे हो, है ना, यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ वेल्थ कर रहे हो, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट हो रहा है ना, इकोनॉमिक क्रिटिक आपने करना शुरू किया। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक नेशनलिज्म। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ सोशल यूनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, और सोशल यूनिटी बहुत जरूरी है, इससे हम एक शेयर्ड आइडेंटिटी को समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो यूनिटी को प्रमोट कर रहा है, तो उसका सोशल मैनिफेस्टेशन हो गया, है ना। तो इस तरह के कल्चरल मैनिफेस्टेशन, सोशल मैनिफेस्टेशन, देयर आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. So there are diversity of expressions when we are talking about nationalism. Nationalism does not mean that we are talking only about a political movement. It is manifested in multiple ways. But when we talk about nationalism, जब हम nationalism की बात करते हैं तो अब ये कीवर्ड है जो आपको हमेशा याद रखना है. What is nationalism? तो आप कहोगे nationalism is a modern political consciousness. ठीक है, आधुनिक राजनीतिक चेतना है. तो ऐसे ये कीवर्ड्स हैं. नेशनलिज्म क्या है? तो नेशनलिज्म आप शुरुआत ही करो बताने से कि ये क्या है, एक मॉडर्न पॉलिटिकल कंसिस्टेंस है. और ये कैसी कंसिस्टेंस है? ये एक ऐसी कंसिस्टेंस है जहां वो सभी लोग जो एक कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी धीरे धीरे डेवलप हो जाती है. और ये सेंस ऑफ यूनिटी धीरे धीरे उनको इस बात का एहसास दिलाती है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, है ना, जिस रीजन में रहते हैं, जिस टेरिटरी में रहते हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं, जिस लैंग्वेज को बोलते हैं, जिस कल्चर को फॉलो करते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी है, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, वो सब शेयर्ड है. तो हमारी अपनी सॉवरेनिटी होनी चाहिए, हमारी अपनी राजनीतिक संप्रभुता होनी चाहिए, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होनी चाहिए. और हमारी अपनी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी तब होगी जब एक नेशन स्टेट के रूप में हमारा एग्जिस्टेंस होगा. तो हमारा नेशन स्टेट हो, हम एक राष्ट्र है, इस बात की समझ होना. जैसे इंडिया, जैसे ब्रिटिश क्या कहते हैं, ब्रिटिश क्रिटिसाइज्ड दैट इंडिया वाज मियर अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी, पीपल वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, डिफरेंट रीजन्स, है ना. एक रीजनल स्टेट को, प्रिंसली स्टेट को लगता था कि मैं अपने आप में एक अलग देश हूं, दूसरे प्रिंसली स्टेट के रूलर को लगता था मैं अपने आप में एक अलग देश हूं. तो वो कंसिस्टेंस था ही नहीं. तो नेशनलिज्म अचानक से नहीं मैनिफेस्ट होगा, धीरे धीरे मैनिफेस्ट होगा. लोगों को एक सेंस ऑफ यूनिटी, इस बात का धीरे धीरे एहसास होने लगेगा, है ना. और जब वो एहसास होने लगेगा, ठीक है, और ये एहसास कई तरीके से होगा. जैसे वी आर शेयरिंग द सेम हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, है ना, तो हम एक हैं, ठीक है. तो वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होगा, है ना. तो ऐसे ही धीरे धीरे नेशनलिज्म ग्रो करता है. व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, इट्स रूट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक, है ना. जैसे यूरोप से इसके रूट्स, जैसे इंटेलेक्चुअल रूट्स, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में रेनेसा, एज ऑफ एनलाइटनमेंट पढ़ा होगा, मॉडर्न आइडियाज पढ़ा होगा, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन था, है ना. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया वो पढ़ा होगा, तमाम ऐसी चीज़ें. तो यूरोप में जो
मतलब रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, उन रिवॉल्यूशंस में भी हमें इसका मैनिफेस्टेशन दिखता है। जैसे इंटेलेक्चुअल रूट तो हो गया रेनेसा एंड एज ऑफ एनलाइटनमेंट, हियर वी सी द इंटेलेक्चुअल रूट ऑफ नेशनलिज्म, बट डिफरेंट रिवॉल्यूशंस दैट वर सीन इन यूरोप, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैटर्निटी। रशियन रिवॉल्यूशन है 1917 जो सोशलिज्म की बात करता है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी 1870-71, है ना। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, यहां पे हम देखते हैं द पॉलिटिकल बर्थ और पॉलिटिकल रूट्स ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, कि कैसे धीरे धीरे, है ना, लोगों ने इन रिवॉल्यूशंस ने कैसे जनता की जो मानसिकता थी, मेंटालिटी थी, उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। दीज रिवॉल्यूशंस ट्रांसफॉर्म्ड, है ना, द इंटायर सब्जेक्ट्स। यानी कि लोग पहले सिर्फ प्रजा थे, एक राजा था, लोग प्रजा थे, अब वो प्रजा होने के साथ साथ अपने आप को नागरिक समझने लगे। नाउ दे वर लाइक सिटीजन्स एंड नाउ दे वर असर्टिंग डिमांड्स ऑफ द सिटीजन्स की सोवरेनिटी हो, नेशन स्टेट हो। और इस पे एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया नेपोलियन ने। नेपोलियन भी पढ़ा होगा आपने, 1804 to 1814-15, उस बीच में नेपोलियनिक वॉर्स जो हैं, नेपोलियन ने क्या किया कि जो नेशनलिस्ट आइडियाज है उनको यूरोप के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने में भी काफी कंट्रीब्यूट किया। ये आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। यूनिफिकेशन मूवमेंट्स जो थे ये है। बट जब हम इंडिया की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एशिया and Africa, when we talk about countries of Asia and Africa, in India, when we talk about India in Asia, so this nationalism, ये जो नेशनलिज्म है भारत में, राष्ट्रवाद, केवल इंडिया में नहीं, हम एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज सबकी बात करें तो यहाँ पे जो नेशनलिज्म का विकास हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ, ये एक एंटी कॉलोनियल फोर्स के रूप में हुआ। The growth and development of nationalism in the countries of Asia and Africa, we are talking here in context of India, so it emerged as an anti-colonial force, है ना, जिसमें लोगों की जो people were inspiring and aspiring for independence, ठीक है, लोग आज़ादी चाहते थे। तो ये ध्यान रखना है कि नेशनलिज्म यूरोप में इसका ओरिजिन है, ठीक है, कहाँ कहाँ रूट्स हो रहे हैं ये बता दिया। बट एशिया और अफ्रीका में ये किस रूप में दिख रहा है, एशिया और अफ्रीका में हमें एंटी कॉलोनियल फोर्स के रूप में दिख रहा है। जैसे व्हाट वी सी इन 19th सेंचुरी, आपको पता है 1858 ऑनवर्ड्स देयर इज डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। तो कंपनी ने तो एक्सप्लॉइट किया ही किया। व्हेन देयर वाज डायरेक्ट ब्रिटिश रूल वी आल्सो फील एक्सप्लॉइटेड, कि ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इज देयर इज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, प्रजातीय भेदभाव हो रहा है। द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज आर डिजाइन्ड इन सच अ मैनर that instead of fulfilling the interest of India, they are fulfilling more the interest of Britain. भारत से ज्यादा वो ब्रिटेन के हितों की रक्षा कर रही है ना। ये लोगों को समझ में आना शुरू हुआ। कैसे समझ में आना शुरू हुआ, इसमें कुछ इंटेलेक्चुअल्स का कंट्रीब्यूशन है। इकोनॉमिक क्रिटिक, है ना, अर्ली नेशनलिज्म जो आप पढ़ते हो उसकी वजह से लोगों को समझ में आना शुरू हुआ। वेस्टर्न एजुकेशन का प्रमोशन हुआ, ठीक है, इससे भी लोगों के दिमाग की बत्ती चली। प्रेस, रेलवेज का डेवलपमेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इन सब ने लोगों के लेवल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाया। आईएनसी फॉर्मेशन इन 1885, है ना, एंड लेटर वी सी दैट दिस पॉलिटिकल पार्टी, है ना, अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी, दे ऑपरेटेड मास मूवमेंट्स दैट वर वेरी पॉपुलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो एनसीएम है, सीडीएम है, तमाम ऐसे मास मूवमेंट हुए। एज अ पॉलिटिकल पार्टी देयर वाज ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी। नाउ वी वर आस्किंग फॉर पॉलिटिकल डिमांड्स कि हमें राइट्स दो, पार्टिसिपेशन दो, रिप्रेजेंटेशन दो। वी वर क्रिटिसाइजिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटेन इन इंडिया। वी वर डूइंग इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो दिस ऑल इज व्हाट, ओके, दिस ऑल इज अ सिंबल दैट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स एंटी कॉलोनियल फोर्स। यही है एंटी कॉलोनियल फोर्स। इंडिया में कॉलोनियल रूल है, हम कॉलोनियल रूल से पीड़ित हैं, कॉलोनियल रूल से लड़ने के लिए आवाज उठा रहे हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसने धीरे धीरे हमारे अंदर क्या किया, है ना, वो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद, इसके विकास को बढ़ाया। तो जब नेशनलिस्ट हिस्टोरियन से आप बात करोगे, व्हेन यू टॉक अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस विथ रेस्पेक्ट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, जैसे आप बिपान चंद्रा की ही बुक पढ़ लो, तो बिपान चंद्रा कहते हैं कि नेशनलिज्म पहले तो एंटी कॉलोनियल फोर्स ये है। नेशनलिज्म क्या रहा है, इट हैज बीन अ यूनिफाइंग एजेंट, लोगों को जोड़ने का इसने काम किया है ना, एंटी कॉलोनियल रहा है, ठीक है।
ये चीज़ है। इसके बाद अलग अलग हिस्टोरियोग्राफी में कैम्ब्रिज एंड हिस्टोरियन सेक की इलीट पार्टिसिपेशन, आपको पता है ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की वो बात करने लगते हैं वेन एवर वी टॉक अबाउट कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस। सबल्टन आएंगे तो वो कहेंगे भाई नेशनलिज्म जो है, असली लड़ाई तो जिन लोगों ने लड़ी सबल्टन ग्रुप्स ने, है ना, उस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो आप समझ गए कि मास स्ट्रगल्स, यूनिटी को प्रमोट करना, एंटी कॉलोनियल रेसिस्टेंस, ये सब नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के थॉट हैं। ठीक है, ये चीज़ है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन आएंगे तो वो कहेंगे देखो भाई, मार्क्सिस्ट आपको पता है ये पीजेंट वर्कर, तो उन्होंने देखो पीजेंट वर्कर पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। इतने बड़े मास मूवमेंट बिना मतलब मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट एंड वर्कर के नहीं हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि लीडरशिप किसके हाथ में रही? बुर्जुआ क्लास के हाथ में। तो इन दिस वे दे शो दैट नेशनलिज्म रिफ्लेक्ट होता है, बट वहाँ पे ये उसकी लिमिटेशंस हैं। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ पावर की बात करते हैं, तो दे विल से कि नेशनलिज्म, मास मूवमेंट, ये सब हुआ तो लीडरशिप जो उभरी वो एक इलीट क्लास की लीडरशिप थी, और धीरे धीरे ये इलीट क्लास की जो लीडरशिप है ये पावर के लिए, पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके लिए एक इलीट बार्गेनिंग और पॉलिटिकल नेगोशिएशंस स्टार्ट हो गए, है ना। तो ये उन्होंने माना। सबल्टन ने कहा कि देखो पीजेंट और ट्राइबल पार्टिसिपेशन, जैसे आप देखो 1857 रिवोल्ट के पहले भी कोल और संथाल जैसे रिवेलियन है ना। और आपको पता है मैं रिवेलियन वर्ड यूज कर रहा हूँ, रिवोल्ट नहीं यूज कर रहा हूँ। इट मीन्स वो सिस्टमेटिक है, लॉन्ग टर्म चलने वाले मूवमेंट जैसे हैं। तो कोल और यानी कि जो ट्राइबल कंसियसनेस है, पीजेंट कंसियसनेस है, इनके बिना इतने बड़े मास मूवमेंट्स पॉसिबल कहाँ थे? तो ये वॉइसेस ऑटोनोमस वॉइसेस थी, बट हमने नेशनल मूवमेंट को कुछ खास, है ना, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, कुछ खास इलीट लीडरशिप पे ही फोकस कर दी। दिस इज द आइडिया ऑफ सबल्टन स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस। ठीक है, तो तमाम डिबेट हैं डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म को लेके, बट हियर द क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग द मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन कितने रूप में हुआ? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग कि इंडिया में नेशनलिज्म का मैनिफेस्टेशन कितने तरीके से हुआ, डिस्कस द वेरियस वेज। तो वेरियस वेज में एक, जैसे मैं पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर लूँ तो पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ आरपीएज, रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉलिटिकल डिमांड्स, mass movements that were carried forward by Indian National Congress, political demands that were raised by Indian National Congress, कि शुरू में था स्वराज, फिर आया कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डोमिनियन स्टेटस, है ना। तो ये क्या है? पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेशनलिज्म। इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ नेशनलिज्म क्या हो जाएगा? तो इकोनॉमिक क्रिटिक हो जाएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो जाएगा। जब हम स्वदेशी और बायकॉट जैसे मेथड्स को यूज कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो व्हाट, अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक, है ना, मैनिफेस्टेशन। फिर सोशल मैनिफेस्टेशन क्या हो जाएगा? तो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स से हम इंडिकेट कर देंगे, दैट इज व्हाट सोशल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म भी इसका एक हिस्सा हो जाएगा। आपको पता है कि जो इंडिया की पास्ट कल्चरल ट्रेडिशंस है, जैसे ब्रिटिश एट द सेम टाइम वेयर डूइंग व्हाट, वेयर ट्राइंग टू प्रूव दैट इंडिया कल्चर वाज डीजेनरेट, इंडियंस आर लैगिंग बिहाइंड, भारतीय लोग बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़ी मानसिकता है ना। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, सपेरों का देश है, हम यहाँ इंडियंस को सिविलाइज बनाने आए। इट मीन्स दैट दे वर ट्राइंग टू promote a sense of inferiority complex, and they were trying to establish this fact that it is a white man's burden to civilize Indian people. तो इसके लिए आपको आप पिछड़े हैं, इस बात को दिखाना क्या है? बहुत ही जरूरी है। तो you will see that ancient Indian history will be glorified, the literature will be glorified, different symbols like Bharat Mata, these kind of symbols will come. In education, we will focus on the Indian philosophical traditions, Indian history. It means that glorious cultural achievements of the past, इससे लोगों को familiar कराया जाएगा। So this will also promote or boost a kind of cultural nationalism. So it is also one kind of manifestation. और popular revolts के रूप में तो nationalism का manifestation रहा ही है। Popular revolts में peasant revolts है, tribal revolts and rebellions है, sepoy mutiny है। So in the form of popular revolts and rebellions, we see that nationalism was also manifested. So when you look at all these dimensions, what do you see? Indian nationalism is a single layered process or multi-layered process? So it is a multi-layered process. Indian nationalism is a singular phenomena or it is a plural phenomena? So the answer is it is a plural phenomena. ये plural phenomena है. Got it?
it manifested in various ways. ठीक है, so this is a simple discussion. Okay, but while writing answer in history optional हमें क्या करना है, historical opinions को जरूर include करना है. This we will have to do. ठीक है, now we are coming to the answer. There are two models of answer. This is paragraph format answer and second model I will discuss bullet form. So this is what introduction, this is what conclusion, this part is what main body of the answer. So this is intro, this is main body, this is conclusion. main body में क्या करना है, क्वेश्चन में जिन जिन डायमेंशंस की बात की गई है, पहली चीज कि उनको डिकंस्ट्रक्ट करना है, उनको थोड़ा एक्सप्लोर करना है. दूसरी चीज हिस्टोरिकल इनसाइट्स को दिखाना है. इफ देयर आर सम लिमिटेशंस दैट यू विल हैव टू explain. Lastly you will write the conclusion. So let's look at the introduction. So what this introduction says, Indian nationalism during colonial rule was multi-dimensional phenomena. ये बताया ना आपको, आप चाहो तो प्लूरल फेनोमेना लिख दो, आप चाहे तो इसको मल्टी लेयर्ड फेनोमेना लिख दो. It manifested itself in diverse political, economic, social and cultural forms. It evolved over time. मैंने बताया ना, development of nationalism not sudden, it was gradual, it evolved over time. मैंने बताया एक word यूज किया था, the development of nationalism in India was evolving phenomena, reflecting both elite initiatives and popular participation. देखो हमने बैलेंस कर दिया. ओके, हिस्टोरियोग्राफी में डिबेट है, कुछ लोग कहते हैं, सबल्टन कहते हैं और ये पॉपुलर पार्टिसिपेशन, पीस एंड ट्राइबल कंसिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है. कैम्ब्रिज वाले कहते हैं एलीट क्लास नेगोशिएट करने लगा, ये सारी चीजें. तो आपको बैलेंस करना होगा कि नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में दोनों चीजें हैं. इलीट इनिशिएटिव इसके बिना भी संभव नहीं था और पॉपुलर पार्टिसिपेशन पीस एंड ट्राइबल कंसिस्टेंस के बिना भी पॉसिबल नहीं था. इलीट इनिशिएटिव्स क्यों है? बिकॉज व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक क्रिटिक, कौन कर पाएगा इकोनॉमिक क्रिटिक? पढ़ा लिखा, इंग्लिश एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल क्लास, वही समझ पाएगा. हु विल एक्सपोज द हॉलीनेस ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज? दोज हु आर एजुकेटेड. ओके, तो ये बात आपको समझनी है कि देयर इज अ रोल ऑफ बोथ दीज टू, है ना, हम किसी एक को इग्नोर नहीं कर सकते. सो दैट इज व्हाट राइटिंग बैलेंस्ड अप्रोच इन योर आंसर. सेकेंड पैरा आई हैव रिटन दैट politically, it means that this is political manifestation, this is economic manifestation, this is social and religious manifestation, this is cultural manifestation, this is revolutionary manifestation. So question is asking various dimensions. So here you will see this is dimension number 1, this is dimension number 2, this is dimension number 3, this is dimension number 4, this is dimension number 5. So I have written 5 dimensions here. Political dimensions में क्या लिखा हुआ है? Read it. Nationalism found expression through the formation of INC, subsequent mass movements such as NCM, CDM. According to Bipan Chandra, these movements transformed nationalism into mass-based struggle. आप चाहो तो political nationalism लिख के यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पॉइंट्स भी लिख सकते हो. कि आप यहाँ पे लिख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ RPS 1830s to 80s, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉलिटिकल डिमांड्स ब्रैकेट में लिख सकते हो स्वराज, डोमिनियन स्टेटस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आगे? यू कैन राइट हियर मास मूवमेंट्स, ब्रैकेट में लिख दोगे NCM, CDM, QIM. ठीक है, तो ये हो गया पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन. बट इसको मैं कहता हूं यूज ऑफ स्केचेस एंड डायग्राम्स. ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. ठीक है, पहले ये मॉडल कंप्लीट हो जाएगा तो व्हेन आई विल डिस्कस सिनॉप्सिस, तो हर क्वेश्चन में स्केच कैसे बनाया जाता है आई विल ट्रेन यू इन दिस सेपरेटली. तो आपको कॉन्सेप्ट भी पता रहेगा. तो हम एक कॉन्सेप्ट के 4-4 स्केचेस ड्रॉ करेंगे, 5-5 स्केचेस ड्रॉ करेंगे. तो इतने सारे स्केचेस ड्रॉ करेंगे कि यू विल डेवलप अ मास्टरी एंड कमांड ओवर ड्रॉइंग द स्केचेस. एंड द सेम फॉर्मेट आई विल ऑल्सो ब्रिंग एथिक्स पेपर डिस्कशन. वो शायद बताया मैंने कि GS पेपर 4 एथिक्स का पूरा सॉल्यूशन हिस्ट्री ऑप्शनल वाला जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसी पे रहेगा. यानी कि GS के जितने मेंस के पेपर डिस्कशंस हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, वो सारे मैं इसी चैनल पे लाऊंगा. ठीक है, जो दूसरा हमारा चैनल है उसमें हम GS की फाउंडेशन क्लास और प्रीलिम्स डिस्कशन को रखेंगे. तो धीरे धीरे इस पे वीडियोस आएंगे, आप देखते रहो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन में क्या है? व्हाट इज देयर इन इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन? तो देखो, इकोनॉमिक नेशनलिज्म इमर्ज थ्रू क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन. अब यहाँ दादा भाई नौरोजी, RC दत्त नेम इज इंपॉर्टेंट. स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट सिंबलाइज रेसिस्टेंस टू कॉलोनियल डोमिनेशन प्रोमोटेड. तो देखो, अगर आप चाहो तो स्केच ड्रॉ कर सकते हो. इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन, इकोनॉमिक क्रिटिक, स्वदेशी,
बाइकॉट, प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, ऐसे। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या हो गया, सोशल मैनिफेस्टेशन, दिस इज व्हाट सोशल मैनिफेस्टेशन। यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रह्म समाज, आर्य समाज, promoting social unity, reform, they help creating a modern self-aware society capable of political mobilization. Cultural nationalism में हमने बात की कि जब आप ancient literature, art, symbols like भारत माता इनको promote करोगे and when you will bring in sync with the national education, promotion of national education का हिस्सा बनाओगे, so this is the inner domain where the people, Indian identity will be asserted against colonial cultural hegemony. तो colonial cultural ये जो हेजमनी है वो क्या है, ठीक है, वो यही है कि भाई वो मैंने बताया ना कि सिविलाइजिंग मिशन, व्हाइट मैन बर्डनशिप, ब्रिटिश आर सुपीरियर, यू आर इन्फीरियर, तो उससे आप लड़ सकते हो। तो कल्चरल नेशनलिज्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। तो इसमें जैसे HRA, HSRA या कम्युनिस्ट मूवमेंट्स जो है, या AITUC है, या पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, ये सब, इन सबको हम लेके आ सकते हैं रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के मैनिफेस्टेशन में। So here are the various ways in which nationalism was manifested. नेशनलिज्म का मतलब सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। भारत को आजादी सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के एफर्ट से नहीं मिली, ये सारे एफर्ट्स हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो यहां आती है ना, बाकी भी तो मैनिफेस्टेशंस हैं। लास्टली आई हैव रिटन दैट, एक यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैंने लिख दिया कि जो अनिल सील है, कैम्ब्रिज स्कूल है, आर्ग्यू दैट नेशनलिज्म वाज ड्रिवन बाय एलीट इंटरेस्ट एंड लोकल पावर स्ट्रगल, क्वेश्चनिंग इट्स यूनिफाइड कैरेक्टर। यानी कि इस नेशनलिज्म के लिमिटेशन भी हमने बता दिए। तो लिमिटेशन के लिए दूसरा पर्सपेक्टिव लाना पड़ेगा कि भाई नेशनलिज्म को लेके इतना उछलने की जरूरत नहीं है। नेशनलिज्म जो था इसमें लीडर तो एलीट क्लास बन गया है ना, और एलीट क्लास ने क्या किया है ना, धीरे 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 एलीट इंटरेस्ट, नेगोशिएशन, इन सारी चीजों की बात की। तो वो आपने क्लास में, फाउंडेशन क्लासेस में पर्सपेक्टिव पढ़ा भी होगा। सो दिस यू कैन राइट हियर इन द फॉर्म ऑफ लिमिटेशन। नाउ वी आर कमिंग टू द conclusion part. Therefore we can say that Indian nationalism was not monolithic, not single layered. It was a complex layered phenomena, multi-layered phenomena, or a plural phenomena, or evolving phenomena. It encompassing multiple forms of resistance and identity formation. Its strength lay in ability to integrate diverse expressions into a broad anti-colonial movement. So this is what the answer. I hope that you have got my idea. Now this is the second model in point-wise format. So I am discussing in introduction part, you will write Indian nationalism during colonial rule was multi-dimensional phenomena. It evolved over time, बताया evolving है, combining elite leadership and mass participation। आपने बता दिया कि भाई elite leadership plus mass participation दोनों का रोल है। Manifested across, manifestation, अब ये dimensions आपने बता दिए, political, economic, dimension number 3, social, dimension number 4, cultural, dimension number 5, revolutionary domain, political nationalism में बता दिया, INC, NCM, CDM, है ना, मास बेस्ड स्ट्रगल। बट देखो यहाँ पे जैसे ही हम पॉलिटिकल नेशनलिज्म लिख के स्केच ड्रॉ करेंगे तो हम कम वर्ड्स में ज्यादा बता सकते हैं। जैसे यहाँ शॉर्ट में लिख देंगे डेवलपमेंट ऑफ RPS, फिर बता दिया INC बता दिया, फिर पॉलिटिकल डिमांड्स में बता दिया, कुछ मूवमेंट्स में बता दिया, NCM, CDM। तो इस तरह से यू कैन इनकॉर्पोरेट मोर पॉइंट्स, बट दैट इज ऑल्सो एन आर्ट। ठीक है, वो आर्ट भी आगे मैं बताऊंगा तो इंटीग्रेट होगा। जैसे 5 years के जो क्वेश्चन जब रिवीजन के साथ आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना बेनिफिट हो रहा है। तो अगर आप 10 या 15 ईयर के कर लोगे तो यू विल बी अ मास्टर, बट 15 ईयर क्वेश्चन, 20 ईयर सॉल्यूशन, ये सब हमारे पेड सब्सक्रिप्शन का हिस्सा होगा। ठीक है, मतलब फ्री में तो मैं पढ़ाता ही हूँ, इतना भी सफिशिएंट है। मैं जितना दे रहा हूँ उतना तो कोई नहीं देगा ना, फिर भी है ना, यू विल हैव अ बेटर आइडिया। ठीक है, चलिए 5 ईयर के भी अगर आप कर लोगे तो इन एग्जाम यू विल बी कॉन्फिडेंट। इकोनॉमिक नेशनलिज्म में आते हैं, क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन, दादा भाई नौरोजी, RC दत्त, स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट, प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, सोशल रिलीजियस नेशनलिज्म, रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म यूनिटी, क्रिएटेड अ मॉडर्न पॉलिटिकली कंसियस सोसाइटी, कल्चरल नेशनलिज्म, एक्सप्रेशन थ्रू लिटरेचर, आर्ट, सिंबल्स लाइक भारत माता, प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन। और पार्थ चटर्जी का ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसको याद कर लेना, कोट कर सकते हो कि कल्चरल नेशनलिज्म एक तरह से कल्चरल एसर्शन और इनर डोमेन को दिखलाता है। क्योंकि हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं तो सिर्फ हम सबसे पहले उस कॉलोनियल मेंटालिटी से हमें लड़ना पड़ेगा जो ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि इंडियंस इन्फीरियर है, पिछड़े हुए लोग हैं, है ना। तो उसके लिए बड़ा जरूरी था कल्चरल नेशनलिज्म। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म की बात की तो यहाँ सिर्फ HSRA लिखा हुआ है, बट आप ATAC लिखो, HRA लिखो, HSRA लिखो, ये सारी चीजें यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो। सबल्टन पर्सपेक्टिव आपको बताया था रणजीत गुहा का कि पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट जो है
ये ऑटोनोमस नेशनलिज्म है और इनका ठीक ठाक रोल है, ठीक है। कैम्ब्रिज क्रिटिक तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ पावर की बात करते हैं और उनमें उनको कहना है कि नेशनलिज्म और द मास मूवमेंट्स वर ड्रिवन बाय द एलीट इंटरेस्ट। लास्टली द कंक्लूजन दैट इंडियन नेशनलिज्म वाज नॉट मोनोलिथिक बट इट वाज लेयर्ड एंड डाइवर्स। इसका मतलब ये सिंगल लेयर्ड नहीं था, मल्टी लेयर्ड था, ये प्लूरल था, ये डाइवर्स फेनोमेना था। Its strength lay in integrating multiple forms of resistance, ultimately evolved into a broad-based anti-colonial movement. Ultimately, ये broad-based anti-colonial movement के रूप में evolve हो गया. So I hope that you have got this idea. So we have completed the discussion of question number 2. Now we will come to question number 3. अब देखो question number 3 क्या, ये तो बहुत 10 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत easy थीम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे the question is related to East India Company. East India Company found a ideal puppet in Mir Qasim, but Mir Qasim belied the expectations of EIC. यही है क्वेश्चन कि मीर कासिम कंपनी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, ठीक है। ये बात आपको बताना क्रिटिकली एग्जाम में। तो देखो हियर यू डोंट हैव टू नरेट द फैक्ट्स एंड इवेंट्स बिकॉज दिस इज अ हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर। यहाँ पे फैक्ट्स और इवेंट्स को नरेट नहीं करना है। यू मस्ट हैव एन आइडेंटिटी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया, how colonial establishment started. So it started with control over Bengal, Battle of Plassey. The developments after Battle of Plassey, इस ये भी आपको पता होना चाहिए। वही ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड पपेट रूलर, पपेट रूलर ही उनकी पसंद क्यों थी, कठपुतली शासक ही क्यों लाना था। पपेट रूलर का मतलब क्या होता है कि a nominal sovereign that will be controlled by someone else, that is puppet। जैसे बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे सिराजुद्दौला था या उसके मुर्शीद कुली खां, बंगाल के जो दूसरे नवाब थे, दे वर नॉट पपेट्स, वो नॉमिनल नहीं थे, दे वर द रियल हेड एंड दे वर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन एल्स। आपको पता है दे वर टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस। पपेट का मतलब हो गया कि आफ्टर सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी विल ब्रिंग वन पर्सन हु विल बी कंट्रोल्ड बाय कंपनी, दैट इज द पपेट, है ना। तो आफ्टर सिराजुद्दौला मीर जाफर एंड देन आफ्टर मीर जाफर वाज रिप्लेस्ड विथ मीर कासिम। But Mir Qasim later did what? Later Mir Qasim tried to assert his own independent authority. वो अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की कोशिश करने लगा, है ना। तो अंग्रेजों ने याद दिलाया कि बेटा होश में आओ, गुलाम कभी बादशाह नहीं बनते, ठीक है। उन्होंने फिर मीर कासिम ने कहा नहीं भैया हमने तो इतिहास पढ़ा है, कई बार गुलामों को बादशाह बनते हुए देखा है ना। तो मैं वो जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ूंगा, अकेले नहीं हो पाएगा तो दूसरों का साथ लेके तोड़ूंगा, है ना। तो मीर कासिम रेसिस्टेड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ये बहुत ही एक यूनिक चीज है कि द पपेट 1760 we see Mir Zafar replaced with Mir Qasim. Mir Qasim was a puppet chosen by East India Company and the same Mir Qasim was resisting colonial authority. वो colonial authority को और colonial exploitation को resist कर रहा है। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने इसकी पीठ थपथपाई, कहा बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, हम हिस्ट्री में जब भी लिखेंगे तो लिखेंगे इसको कि मीर कासिम was the symbol of colonial resistance, he resisted colonial exploitation। कहा हम ये बात ज्यादा ध्यान से बताएंगे, पपेट वाली बात को थोड़ा कम लिखेंगे, ठीक है। तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने कहा कि मीर कासिम तो रेसिस्ट कर रहा था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का। गॉट इट, ये चीजें हैं। अब इसमें क्या है कि डिबेट है कि मीर कासिम वाज अ पावर सीकिंग रूलर, तभी तो पपेट बना, और पपेट बना तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इसके अंदर नेशनलिस्ट रेसिस्टर वाला भूत आ गया कि भाई अब तो मैं रेसिस्ट करूंगा कॉलोनियल अथॉरिटी को। तो देखो पूरी कहानी ये है कि आफ्टर पलासी पपेट नवाब्स का एक सिलसिला शुरू हुआ, मीर कासिम को लाया गया, मीर कासिम को लगा कि यार मैं तो नवाब बन गया, ठीक है। बट लेटर ग्रेजुअली ही रियलाइज्ड कि नवाब बनने का भी कोई मतलब नहीं है। द ट्रेजरी ऑफ बंगाल वॉज एम्प्टी, बंगाल का खजाना खाली था। और जो दस्तक की प्रॉब्लम थी, दस्तक अब यहां नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग जानते हो मिसयूज ऑफ दस्तक, वो मिसयूज ऑफ दस्तक सभी तक बनी हुई थी। इसके बाद क्या हुआ, मिसयूज ऑफ दस्तक के बाद बंगाल का जो मार्केट था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के हाथ में पूरी तरह से आ गया, क्योंकि नवाब इंटरफेयर करने की कंडीशन में नहीं था, वो तो खुद पपेट था। तो मार्केट में आर्बिट्ररी रेट्स पर फोर्सिबली बलपूर्वक कंपनी मर्चेंट स्टार्टेड परचेजिंग रॉ मटेरियल्स, ठीक है। दे स्टार्टेड परचेजिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द इंडियन businessmen in the market forcibly at the price that is dictated by the company officials themselves। तो मनमाने दाम पे खरीदना शुरू किया, इससे लोगों को नुकसान होना शुरू हुआ, मिसयूज ऑफ दस्तक से नुकसान होना शुरू हुआ,
And from time to time, frequently, the British EIC officials were asking for gifts and bribes from मीर कासिम। का समय समय पे हफ्ता पहुंचाते रहो। मीर कासिम टेंशन में कि ट्रेजरी खाली है, पैसा है नहीं, व्यापारी कंप्लेन कर रहे हैं, जो रेवेन्यू के सोर्स हैं उन सबको इन लोगों ने पूरी तरह से स्ट्रक्चरली डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो बड़ा मुश्किल है ऐसी सिचुएशन में, है ना, बंगाल के रूलर के लिए गवर्न करना। और ये सब इसलिए हो रहा था कि अंग्रेजों का तो केवल फोकस था कि अपना बेनिफिट हमें क्या करना है, इंश्योर करना है। तो फाइनली मीर कासिम डिड व्हाट, मीर कासिम ने सोचा कि अब मैं थोड़ा इस स्ट्रक्चर को रेसिस्ट करूंगा। मीर कासिम स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग ब्रिंगिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिजिकल रिफॉर्म्स विदाउट कंसल्टिंग EIC ऑफिशियल्स। बिना EIC ऑफिशियल्स के कंसल्टेशन के लिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव और फिजिकल रिफॉर्म्स करने लगा। इससे कंपनी को बहुत निराशा हुई, डिसअपॉइंटमेंट, दिस बिलाइड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनी। मीर कासिम ने एक और काम किया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। तो मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन जब ये करने लगा तो फिर कंपनी के ऑफिशियल्स के कान खड़े हो गए, तो भाई इसकी क्या जरूरत है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी, ये हमारे ही साथ लड़ना चाहता है क्या? एंड वेरी सुन व्हाट ही डिड, ही अबॉलिश्ड ऑल द इंटरनल ड्यूटीज। देखो दस्तक की वजह से क्या था, मिसयूज ऑफ दस्तक की वजह से कंपनी और उसके ऑफिशियल्स दस्तक का यूज करके, है ना, जो इंटरनल ड्यूटीज है उनको पे करने से बच जाते थे। साथ ही साथ वो उसका मिसयूज भी करते थे जिससे उनको एडिशनल फायदा होता था। बट इससे क्या होता था, बंगाल के राजस्व को नुकसान होता था। और इंडियन मर्चेंट्स को हमेशा ये शिकायत बनी रहती थी कि इससे मार्केट में एक अनइक्वल कंपटीशन की स्थिति पैदा हो गई है। दिस हैज क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ अनइक्वल कंपटीशन इन द मार्केट। तो ये शिकायत थी, और जब ये शिकायत थी तो मीर कासिम ने कहा लाओ झगड़ा ही खत्म कर दूं, सारे इंटरनल ड्यूटीज को खत्म कर दिए। तो अब कंपनी जो प्रिविलेज्ड पोजीशन में थी, अब वो कंपनी प्रिविलेज्ड पोजीशन में नहीं रह गई, ठीक है। और यही नहीं, उसने एक कंपनी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को चोट पहुंचाने का साहस दिखाया इंटरनल ड्यूटीज को खत्म करके। और जब इसने जैसे ढाका से मुर्शिदाबाद जब इसने कैपिटल ट्रांसफर किया, जैसे देखो एक कैपिटल है मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मीर कासिम, ठीक है, सॉरी, मीर कासिम ट्रांसफर्ड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। एक इसके पहले बंगाल का नवाब था मुर्शीद कुली खां, ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। याद रखना, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट उसका रीजन क्या था कि अगर हम मुर्शिदाबाद, मैं मुर्शीद कुली खां की पहले बात कर लूं कि मुर्शीद कुली खां ने ढाका से मुर्शिदाबाद कैपिटल इसलिए ट्रांसफर किया क्योंकि उसको लगा कि अगर कैपिटल मुर्शिदाबाद होगा तो बंगाल का जो रेवेन्यू है, खासतौर से जो वेस्टर्न रीजन से बंगाल के आ रहा है, उस पर हमारा ज्यादा मतलब एडवांस कंट्रोल हो जाएगा। इससे हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को हम ज्यादा बेहतर ढंग से देख पाएंगे, साथ ही साथ ट्रेड एंड कॉमर्स को मॉनिटर करना भी ज्यादा आसान होगा क्योंकि वो गंगा का जो ट्रेड रूट है उससे वो नजदीक था। ये तो रीजन था उसका, है ना। और बाय द एफर्ट्स ऑफ मुर्शीद कुली खां, वेरी सून मुर्शिदाबाद बिकेम और इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सेंटर ऑफ बंगाल। वो मुर्शिदाबाद इस रूप में इवॉल्व कर गया। तब से कैपिटल तो मुर्शिदाबाद ही थी। अब मुर्शिदाबाद में क्या था, एक्सेसिव इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश, क्योंकि बंगाल का नवाब वही था। नाउ मीर कासिम थॉट दैट इफ आई विल शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, अगर मैं कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता हूं तो इससे जो EIC का एक्सेसिव इंटरफेरेंस है, अत्यधिक हस्तक्षेप है, उससे मैं बच जाऊंगा। और साथ ही साथ वो उसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तरह तैयार करूंगा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी तो मैं कर ही रहा हूं, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी, एक स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन, ऐसा करके हम कंपनी से आगे लड़ने का एक रोड मैप बना सकते हैं। तो दिस डिसीजन ऑफ कैपिटल ट्रांसफर बाय मीर कासिम कहां से कहां ले गया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। याद रखना, मुर्शीद कुली खां ढाका से मुर्शिदाबाद लाया था, मीर कासिम, तब से मुर्शिदाबाद बनी हुई थी, मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाएगा। इससे ब्रिटिश अथॉरिटीज को बहुत ही ज्यादा टेंशन है। उनको लगा ये तो सीधा हमारी अथॉरिटी को डायरेक्ट चैलेंज देने वाला हो गया। देन मीर कासिम जॉइंट हैंड्स विद अवध निजाम सुजाउद्दौला, मुगल एम्परर शाह आलम II, है ना, एक उसने एक्सेस बनाने की कोशिश की। एंड अल्टीमेटली वी सी दैट दिस रिजल्टेड, है ना, इन अ कॉन्फ्लिक्ट, एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट इन हिस्ट्री इज नोन एज बैटल ऑफ बक्सर, है ना। सो वी से दैट इन मॉडर्न सेंस अगर हम देखें तो मीर कासिम तो नेशनलिस्ट नहीं है। इन मॉडर्न सेंस मीर कासिम इज नॉट नेशनलिस्ट बिकॉज ही वॉज अ पॉपेट रूलर, बट लेटर द एक्शंस और the actions which were taken by Mir Qasim, okay, it shows that Mir Qasim realized that there was need to consolidate his own power, but while attempting to do so,
It also shows that his resistance is like an early challenge for the company's dominance and presence in India. मीर कासिम का जो रेसिस्टेंस है, जैसे हम कहते हैं ना कि बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी तो वास्तविक लड़ाई नहीं थी, इट वॉज नॉट रियल बैटल वॉज फॉट, दैट वॉज बैटल ऑफ बक्सर. तो कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया कैसे है? बैटल ऑफ प्लासी से. तो उस एस्टैब्लिशमेंट को अगर किसी ने चैलेंज किया तो वो मीर कासिम ने किया बैटल ऑफ बक्सर पे. तो कंपनी के डोमिनेंस को अर्लियर स्टेजेस में इसने चैलेंज किया. दिस इज द इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ मीर कासिम. नाउ दिस इज द आंसर, फॉर्मेट 1 इन कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट. हियर वी हैव रिटन व्हाट? इंट्रो, दिस इज व्हाट? कंक्लूजन, दिस इज व्हाट? मेन बॉडी. तो ये 10 मार्कर क्वेश्चन है, सो वी हैव टू राइट 150 वर्ड्स ओनली. ठीक है ना? तो इंट्रो में क्या लिखा? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, आप चाहो तो ब्रैकेट में यहां 1757 लिख सकते हो. EIC शॉट टू कंट्रोल बंगाल थ्रू प्लेएंट नवाब्स. ठीक है, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश थी कि बंगाल को प्लेएंट नवाब्स का मतलब होता है, ये गलत नहीं लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि पपेट को प्लेएंट लिख दिया. प्लेएंट का मतलब समवन हु कुड बी इजिली कंट्रोल्ड और समवन हु कुड बी इजिली परसुएडेड. तो जो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, है ना, वो जो रबर स्टैंप होता है वो किसी ऐसे ही आदमी को बनाते हैं जो प्लेएंट होता है, जिसको इजिली परसुएड किया जा सके, जिसको इजिली कंट्रोल किया जा सके, और जब समय आए तो उसको क्या करो? आसानी से हटा दो वहां से, है ना. तो देखो, पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी कि कंपनी शॉट टू कंट्रोल बंगाल थ्रू प्लेएंट नवाब्स. मीर कासिम was initially installed in 1760 as puppet, but very soon he belied का मतलब क्या हो गया? कि something that gives a false impression and later proves the opposite to be true. आपको लग रहा है कि इस आदमी से मुझे ये उम्मीद है, ये पूरी करेगा, बट एग्जैक्टली उसके उल्टा करता है वो, जैसे ही आप उस पर भरोसा कर लेते हो. So that is called belied. So very soon Mir Qasim belied these expectations by asserting his autonomy. In second paragraph, we have written that Mir Qasim undertook significant administrative and fiscal reforms. He shifted his capital to Munger, reorganized the army, and most importantly, he abolished internal duties to create a level playing field for all. And in this way, he challenged the company's misuse of trade privileges. ये मैंने बता दिया आपको. This directly threatened the company's economic interests, especially its officials who were engaged in private trade. Then the resulting conflict culminated in open hostilities, Battle of Buxar 1764. अब इसमें देखो हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव भी मैंने इंक्लूड किया कि हिस्टोरियन लाइक इरफान हैव इंटरप्रेटेड दिस एज अ क्लैश बिटवीन कॉलोनियल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड इंडिजिनस असर्शन, है ना. मीर कासिम was not a nationalist in modern sense. बताना है आपको, he was not a nationalist in modern sense, but his actions were driven by the need to consolidate his own power. Nevertheless, his resistance marked an early challenge to company's dominance. ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस इस बात में है कि his resistance marked the early challenge for the colonial dominance. So his importance, significance lies in this fact. Now the same answer in point-wise format, introduction part, I have written, after Battle of Plassey, EIC controlled Bengal through puppet nawabs. Mir Qasim 1760 में आता है. Initially installed as a compliant ruler और pliant ruler, इसी में compliant में pliant आप लिख सकते हो, but soon asserted independence. ठीक है, क्या किया मीर कासिम ने? Reforms. Shifted capital to Munger for strategic control, reorganization of army, abolishing internal duties to ensure free trade. Conflict with the company challenged misuse of trade privileges by company officials, threatened company's economic interests, private trade, led to open conflict culminating in Battle of Buxar. ठीक है, हिस्टोग्राफिकल व्यू में इरफान हबीब वाला व्यू बता दिया कि दिस क्लैश वाज सीन एज अ क्लैश बिटवीन कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड इंडिजिनस असर्शन. कंक्लूजन बताया, कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कंक्लूजन तो आप एकदम हाईलाइट कर जाना, जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, and all these conclusions which I am discussing with you are well researched and balanced conclusions. ठीक है, तो कोई भी conclusion कहीं से भी weak नहीं है मेरे आंसर का कोई भी स्ट्रक्चर, इस बात को आप एकदम ध्यान रखिएगा और आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, किसी भी हिस्ट्री के एक्सपर्ट से जाके conclusions को क्रॉस चेक और वेरीफाई करिएगा, है ना. So whatever the answer I have designed here, these answers are, है ना, in sync with the exact demands of the UPSC, exact needs of the UPSC. ठीक है. Conclusion, Mir Qasim was not a modern nationalist, ये बात हमने बताई, but sought to consolidate power and his resistance marked an early challenge to company's dominance. दो बातें बतानी है कि मीर कासिम मॉडर्न सेंस में नेशनलिस्ट नहीं था, लेकिन मीर कासिम ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेसिस्ट किया
उसका महत्व इस बात में है कि कंपनी के अर्ली फेज ऑफ कॉलोनियल डोमिनेंस में ही अगर कोई आदमी कंपनी की पावर और अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है तो वो मीर कासिम है। और सबसे खास बात की मीर कासिम ने ये जो चैलेंज किया वो डिप्लोमेटिक अलायंसेस के थ्रू भी किया। इसमें अवध के रूलर और मुगल एम्परर शाह आलम II को भी उसने इंक्लूड किया, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सो आई होप दैट यू हैव गॉट माय पॉइंट। सो टुडे पार्ट B we have discussed question number 2, A, B and C. Now I mean to say that later, it means that in the next class, in part C of the video, I will discuss question number 3 and the components of this question will be A, B and C. So in the same format we are going to continue. तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।